Does No, sir. anybody have any clarifications required? Gay-Lussac's law, Avogadro's law, mole concept. Chalo. We'll start with the new concept of percentage composition. Arya, any guess what is the meaning of this phrase percentage composition? Arya, हाँ सर. बता दो, guess करो. सर क्या? What is the meaning of the word percentage composition? I can't hear you. So I'm proceeding, ठीक है? Percentage composition का मतलब होता है, let's say there is a compound called CO2. तो CO2 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम. ऑक्सीजन कितना है? 2 into 16 grams. टोटल हो गया 44 grams. ये उसका molecular weight है. So what is the weight of carbon? 12. Weight of carbon. Very good. It is 12. So the percentage of carbon in this compound is basically 12 by 44 into 100. Is it too difficult to understand? No sir. बस ये उसका percentage composition है. And what is the percentage of oxygen in the compound? 32 by 44 into 100. Very good. 32 by 44 times 100. ठीक है ना? Simple concept था. Let us take some more examples. अब हम आप लोग को compound दे रहे हैं और उनमें एक एलिमेंट को हाईलाइट कर दे रहा है. यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट इन दैट कंपाउंड. आप लोग को जो इनपुट चाहिएगा आई गिव यू. तो लेट अस स्टार्ट विथ H2O. What is the percentage of hydrogen? On the right hand side, I will write the atomic weight of relevant substances. Start. So 11.1111. सारा आंसर एक संग डिस्कस करेंगे, आप लोग करते जाओ. किसी का हुआ? हाँ सर. चलो पहला आंसर बताइए. How much did it come out to be? So 11.11%. Very good. Second one will be 3 by 17 into 100. And what will be the number? What will be the answer? 17.6%. Sorry, didn't get that. 17.6. 6. 17.6. Yes, so 17.64. Okay.
परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, So 12%. तो कार्बन का परसेंटेज निकालना है। हाँ कार्बन, मेरा गलती हो गया, हाँ 12% इज करेक्ट। 12%। परसेंटेज ऑफ सल्फर, 32। नो 0.65. सॉरी 32.6 के आसपास। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किसी को समझने में दिक्कत हुआ? Yes. अनुज क्लियर है? अर्नेश, Yes, sir. करण, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। मेरा वॉइस क्रैक हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया? रियांशी क्लियर है? हाँ सर। गुड। किसी को भी यहाँ पे कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लो, अदरवाइज आई विल टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो दिस वाज अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हमको एक कंपाउंड दे ऐसा, कैन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन? चलो फर्स्ट वन हाइड्रोजन, So 6.7. 6.67% is absolutely correct. सेकंड वाला बताओ तो, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? $250. Very good, 250. And what is the percentage? 25.6. एकदम correct, perfect. So this is how we calculate percentage composition. अब जो next topic हम लोग सीखेंगे, it is called empirical formula. नाम repeat करो। इसका फॉर्मूला में एक चीज इंपॉर्टेंट है टू नोट कि इट इज EMPIRICAL. Some people I have seen write EMPERI, वो नहीं है फॉर्मूला, है MP है, EMPI. सो ये होता क्या है? मान लो देयर इज अ कंपाउंड लाइक CO2, there is a compound like H2O, there is a compound like H2O2, and there is a compound like C6H12O6. Now you will notice something interesting. You will realize कि first compound में जो carbon and oxygen है, उनके number of atoms are 1 and 2, and therefore they cannot be further reduced. मतलब C और O2 का जो रेशियो है वो हमेशा C1O2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसी तरह H2O में जो फॉर्मूला है ये H2O ही रहेगा, मतलब ये कभी रिड्यूस नहीं हो सकता है। There is no common factor between this number and this number. But in this case दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो
So therefore the empirical formula of this compound is HO. इस केस में तीनों 6 से डिवाइड हो रहा है. So, हाँ, तो मेरा मिस हो गया, मैं गलती से लीव कर दिया था इंटरनेट इश्यूज. हम वापस बता देते हैं. Empirical formula of a compound is the simplest whole number ratio में एक compound को जब हम लोग represent करते हैं, तो it is the least possible ratio in which you can express a compound. Simple language में if you have a compound like CO2, वहां पर एक कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन है, the ratio between them cannot be further reduced and therefore this only is the empirical formula. Even for water इसको reduce करना further possible नहीं है, तो यही उसका empirical formula है. But in case of H2O2, H भी 2 एटम है, ऑक्सीजन का भी 2 एटम है, तो इन दोनों को हम लोग 2 को रिड्यूस कर सकते हैं, तो मेरा फाइनल नंबर बिकम्स H1O1 मतलब HO. ये है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला. सिमिलरली C6H12O6 में तीनों नंबर 6 से डिवाइड होता है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी C1H2O1. एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? Okay. So I'm giving you a compound now. You tell me उसका empirical formula क्या होगा? CH. CH. Very good. Very good. इसका बताओ तो. CH. Very good. अगर हम आपको उल्टा पूछें कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, मुझे कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप बता पाएगा? नहीं सर. नहीं बता पाएगा. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है. अनलेस आई गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, आप कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाएगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला डेफिनेटली निकल सकता है. इसका बताओ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला. HSO2. The same thing again, no change. तो H2SO4. I think somebody said HSO2. Yes sir. हाँ, तो रॉन्ग होगा ना वो. समझा? Did you understand wrong क्यों है? Because यहाँ पर 1 था, तो H का 2 था, अच्छा, सल्फर का अच्छा. 1, ऑक्सीजन का 4. Okay. आपने नोटिस नहीं किया. Try this. So same. Absolutely. Same. Absolutely. इसका बताओ. CH2. CH2 is correct. तो समझ में आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? Yes sir. It's a simple concept, just needs to be cleared. एकदम दिमाग में बैठ जाए तो कभी लाइफ में गलती नहीं होगा. तो कभी भी कोई कंपाउंड देके बोले उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो उसको रिड्यूस कर दो एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है? Shall I move on to the next concept? Yes sir. अब हम लोग करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन के बेसिस पे कि व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है? तो कैन एनीवन सेंड मी अ पिक्चर ऑफ अ सॉल्व्ड एग्जांपल ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला का सम्स. जस्ट एक सम का पिक्चर भेज दो, तो वो डेटा मुझे चाहिएगा टू टीच अ सम. कौन भेज रहे हैं? So I'm sending. थैंक यू. सुपर फास्ट. तनिषा, अच्छा, डिड यू सेंड मी फॉर नंबर 2 और फॉर नंबर 1? Oh, अच्छा, sorry. एक्चुअली मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे खाली क्वेश्चन चाहिए. नंबर 1 का क्वेश्चन भेज दो. थैंक यू. परफेक्ट. देखो यहां पर क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर में देयर आर 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो यहां पर लिखो
नेम ऑफ द एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। These sums have a very standard procedure, तो देर इज नो चांस कि आपको कुछ एक्सेप्शनली डिफिकल्ट या एकदम अलग सा कुछ मिल जाए। इफ यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग इन द क्लास, आप लोग कभी इसमें गलती कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आई विल बी गिवन परसेंटेज कंपोजिशन। दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन, नथिंग टू वरी अबाउट। एटॉमिक वेट, ऑब्वियसली गिवन इंफॉर्मेशन, आई डोंट नीड टू मर्क दिस अप एट ऑल। नेक्स्ट विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है वो फिल इन कर लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, इसका 40 दिया है। हाइड्रोजन इज गिवन टू बी 6.7% and oxygen is 53.3%. This is the given information in the question कि कार्बन का परसेंटेज is 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज is 6.7, ऑक्सीजन का परसेंटेज is 53.3. Sometimes what they do is ये दो परसेंटेज दे दिया, थर्ड वाला they have not given, तो क्या करेंगे? Calculator. कैलकुलेटर से यूज करेंगे। कैलकुलेटर से क्या करेंगे? मतलब I हाउ डू यू? don't know. We have to find it out. हाँ, 100 माइनस करके कर देना, ठीक है। वेरी बेसिक स्टफ, थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी इट हैपेंस कि आप लोग हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इज 16। ये वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेशियो। Atomic ratio is nothing else but just this table divided by this table. मतलब this value divided by this value. So how much is 40 by 12? 10 by 3. 3.5. मतलब 3.33. 3.33 भाई. How much is 6.7 by 1? 6.7. Very good. Not difficult था. How much is 53.3 divided by 16? 3.33. Very good. कभी-कभी ना you actually need to be a bit smart. Rather than solving, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक एटॉमिक रेशियो 3.33 आया था और ये 53.3 by 16 है। तो 16 ones are 16, 16 2 times 32, 16 3 times 48, तो 3 times से 48 आ ही गया, तो 3 से थोड़ा बड़ा है, तो it is definitely going to be the same number। तो आप लोग यहीं का वैल्यू यूज कर सकते हैं rather than solving it again। तो ये तीनों वैल्यू आ गया। The next column is a very simple column. It's called simplest ratio. बस ये ध्यान रखना, ये वैल्यू शुड बी अ होल नंबर, आई मीन अ नेचुरल नंबर। कैसे निकलता है? बहुत इजी है। पहले ये तीनों वैल्यू यहां पर लिखो, ठीक है ना। नाउ आइडेंटिफाई which one of them is the smallest। 3.33. 3.33, सबको 3.33 से डिवाइड कर दो। ये approximately 2 आएगा, तो we can take it as 2, no problem at all। So there you are, this value that you get, C का 1 atom, हाइड्रोजन का कितना है रे? 2, ऑक्सीजन का 1। दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2O। CH2O is the empirical formula of the compound। So it can be in any order, right? Yes, I can write the absolutely correct, very good point actually। It can be written like this, it can be written like this, it can be written like ऐसा, मतलब कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आगे पीछे करके। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। oops, is this part clear to everyone? इंडिविजुअली देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुज क्लियर है? हाँ सर। आर्या? Yes, sir. Arnesh? हाँ sir। Was it a yes sir or a no sir? Yes sir। Yes sir। Himakshi? Karan? Yes, sir. Good। Keshav? Yes sir। Kshitij? Yes, sir.
रेयांशी, Yes, sir. सौम्या, Yes, sir. सुनिधि, Yes, sir. तनिषा। Yes, sir. अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, डोंट हेजिटेट। हाँ, Yeah, okay, sir. सुपर कूल। Sir, यहाँ तक if हो गया the हम लोगों का। number, यस, somebody had a question, please. sir, if the number is suppose even after dividing it with the lowest value, Very good question. I if know it this just question comes is going to come. हम जानते हैं। 0.5 करके तो यस यस यस, आई नो व्हाट यू आर आस्किंग। मान लो मेरा लास्ट कॉलम का वैल्यू, ये लास्ट वाला कॉलम है, उसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद आया 7, 3.5 और 7। आ सकता है ना? मान लो आया, तो हम तीनों को 3.5 से दोबारा डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 2, 1, 2। आप क्या सजेस्ट कर रहा था वैल्यूज, मुझे बताओ। so anything 0.5 round off करने के बाद what do we do? Probably I did not understand what you are saying. अच्छा, मान लो ऐसा आया। अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, आप शायद बेटर समझ पाएगा। अच्छा, सब कोई बताओ कि मेरा दो एलिमेंट है ए और बी, उनका रेशियो आ गया 0.5 और 0.33। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज द एटॉमिक रेशियो। हाउ डू आई फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो? So divide each Dividing by by 0.33. divided by 0.33. अनफॉर्चुनेटली जब आप दोनों को 0.33 से डिवाइड करेगा फिर डेसिमल आ जाएगा। करके देखते हैं। आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, मेरे पे भरोसा नहीं है तो। व्हाट यू विल नोटिस इज ये वाला वैल्यू तो 1 आ गया, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.5। अब क्या करें? इज इट अ होल नंबर? मैंने तो कहा था होल नंबर में ही आंसर बताना। We'll round it we off. round off. नेवर, डोंट इवन थिंक ऑफ राउंडिंग ऑफ। यू कैन राउंड ऑफ 1.95 to 2. You can round off 1.03 to 1. You can round off 7.02 to 7. बात समझ रहे हैं? बट 1.5 को राउंड ऑफ करके 1 भी मत लेना, कभी 3 भी 2 भी मत लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो माय एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी A3B2। Sir, 2 से क्यों करेंगे? बिकॉज मुझे पता है Because you 1.5 have को two 2 से elements. मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाता है। So we'll always multiply it with something that will give us a Yes, whole number. yes, yes. तो in order to make it simple for you, ये तो हमको देखो, I am good with numbers, तो हम ये जल्दी से कर सकते हैं। There are some people who can have challenges with numbers. Numbers देख के ही पसीना आता है, तो उन लोग के लिए एक शॉर्टकट सोच के रखा है। Let me explain you कि हम आप लोग को क्या करने बोलेंगे। ये 1.5 आया था तो उसको 3/2 लिखो, और ये 1 आया था। Yes or no? Yes, sir. अब दोनों का डिनोमिनेटर का LCM क्या है? 2. तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नो चैलेंजेस आफ्टर दैट। सर, अगर नंबर लाइक 1.1 भी है तभी भी इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे? हम आपको नेक्स्ट पेज में वो दिखा रहे हैं, पहले ये समझ लो, फिर हम नेक्स्ट डेटा में दिखाएंगे। अभी एक बार में सब बताएंगे ना तो पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट एग्जांपल दें। आई थिंक द क्वेश्चन वाज फ्रॉम यशवी ना? हेलो यशवी, आपने कुछ पूछा था ना? Did someone ask a question? हाँ सर, somebody asked अगर 1.11 नहीं, वो तो हम समझ गए। मुझे 1.1 में इंटरेस्ट नहीं है रे, मुझे इंटरेस्ट है कि दूसरा नंबर क्या है उसके मन में। ये 1.1 है, चलो दूसरा नंबर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। सर 2, अगर 3 3 हुआ सर? 3, हाँ। तो देखो समझो, ये लोग कोई रेशियो में आ ही नहीं रहे। आप थोड़ा ध्यान से नंबर्स की तरफ देखो। एक काम करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हटाओ। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 30। ये कोई रेशियो में आया ही नहीं, तो फिर इट इज बेटर टू राउंड इट ऑफ एज 1। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरा बात समझ पाया? इट इज सिचुएशन डिपेंडेंट, बट ऐसा नंबर्स हम लोग को कभी नहीं देगा, सो डोंट वरी। हाँ, कैसा दे सकता है वो बताते हैं। अगर पहला नंबर 1.1 है तो दूसरा नंबर कैन कम आउट टू बी 0.55। इन दिस केस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे देख लो, दोनों को 0.55 से मल्टीप्लाई करो। दिस विल कम आउट टू बी 2, दिस विल कम आउट टू बी 1। ये हम लोग को दे सकता है। बट जो पिछला सिचुएशन तुम लोग बोला 1.1 और 3, वो कभी देगा ही नहीं हम लोग को, वैसा डेटा कभी आएगा ही नहीं।
ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस सम। किसी के मन में अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इस सम को जल्दी से रिकैप कौन करके देगा मुझे? तो मैं बोल देता हूँ। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, हम लोग को 3 एलिमेंट दिए हैं और वेरी गुड, गिवन डेटा है, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एक्सीलेंट। एटॉमिक वेट। तो गिवन डेटा दिया है तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होएगा एटॉमिक रेशियो निकालना, विच विल बी द परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। परफेक्ट, वो आ जाएगा, हाँ वो नंबर आ जाएगा। देन सिंपलेस्ट नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो। वो आएगा द एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय द lowest possible number, the lowest एक्सीलेंट, possible atomic लोएस्ट ratio, अवेलेबल नंबर। हाँ, lowest available number, and that will be a simplest ratio, और उसको corresponding element में लगा देना and we'll find the empirical. ऑसम, एकदम परफेक्ट, सुपर फास्ट, सुपर करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ एक नया कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये क्या होता है? तो मेरा कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था भाई? CH2O, करेक्ट? तो CH2 का वेट निकालो, CH2O, बताओ कितना होगा? हाँ या ना? 30। 30. करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। मुझे क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 90, ये बता दिया गिवन। सेम कंपाउंड, सेम क्वेश्चन। तो एम्पेरिकल वेट कितना है? 30, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 90, क्योंकि गिवन था। नेक्स्ट मुझे निकालना है स्मॉल n। बताएंगे स्मॉल n क्या होता है, पहले निकाल लेते हैं। इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, बताओ तो कितना आएगा? 3। ऑसम, 3 इज करेक्ट। तो मेरा स्मॉल n का वैल्यू आ गया 3। तो मुझे क्वेश्चन में फाइनली निकालना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, लेट मी टेल यू, इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इट विल कम फॉर 5 मार्क्स and these are 5 marks for free. तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट में बाहर n। तो व्हाट डू यू थिंक इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में है? सर सर एन का भी डेसिमल में आ सकता है? अगर n का वैल्यू 2.8 आ गया तो उसको 3 ले लेना, अगर 3.2 आ गया तो इसको 3 ले लेना, बट अगर 2.5 आ गया तो कुछ गलती हुआ है, कैलकुलेशन दोबारा चेक करना। ओके सर। कहाँ गलती होगा हम अभी दिखा दे रहे हैं तुमको। अभी एक जगह गलती होने का चांस है इस स्टोरी में, इस सम में एक वेरिएशन पॉसिबल है। यहां तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। तनिषा, No, डाउट्स? sir. गुड, वेरी गुड। आर्या? No, sir. Okay. So the variation in this kind of sum is, मुझे क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे दिया 45। नाउ मॉलिक्यूलर वेट, ये एक रूल है, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो देखो अपने केस में मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 90। वेरी गुड। नाउ द प्रॉब्लम समटाइम्स इज पीपल डोंट रियलाइज कि ये वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है, और वो लोग इसी के साथ सम्स कर देते हैं। तो गलती हो जाता है यहाँ पर। अगर ये वेपर डेंसिटी का वैल्यू होता, मतलब अगर हम गलती से 45 ले लिया होता, तो यहाँ पर 45 बाई एम्पेरिकल वेट आ जाता, मतलब 45 बाई 31.5 आता। दैट इज वेयर वी एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। अगर हम लोग को ये चीज ध्यान हो कि वेपर डेंसिटी को डबल करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तब गलती नहीं होगा।
एनी क्वेश्चन सो फार? ये वेपर डेंसिटी का फंडा समझ में आया? हाँ सर। गुड। मेरे रूम में अभी एक आतंकवादी घुस गया था रे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ एक और सम करते हैं विद अ फ्रेश सेट ऑफ डेटा सो दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है हम लोगों से। The question says a compound contains 10.47 grams I mean to say 10.47 grams of a compound contains, this is example number 2 from Virav Chitalal, 6.21 grams of X and remaining is Y. तो Y का वेट तो इजीली निकल ही जाएगा। अब बोला है calculate the empirical formula of the compound अगर X का atomic weight is 207 and Y का atomic weight is 35.5. Can you guys try this? किसी का आंसर आया? हाँ सर। गुड। कैसे किया आप लोग? कर रहे हैं कि हो गया? आंसर आ गया? ओके गुड। क्या है आंसर? XY4। करेक्ट, एकदम करेक्ट। गुड। नाउ आप लोग कंटिन्यू करो विथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। जिन लोग का प्रीवियस पोर्शंस हो गया है, जिन लोगों का प्रीवियस पोर्शन नहीं हुआ है, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैड टॉट अर्लियर। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे गेल्यूसेक्स लॉ एंड देन आई विल टीच मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, गेल्यूसेक्स लॉ किसको किसको सीखना है बताओ? मेरे को नहीं। ओके, द रेस्ट who have the concepts cleared, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, गेल्यूसेक्स लॉ एक लॉ है which is applicable only for gases. This law is not applicable for solids or liquids. ठीक है, it is only applicable in cases of gases. अब ये लॉ क्या बोलता है समझाते हैं आप लोग को।
Gay-Lussac's law states that when gases react, they do so in simple whole number ratios of the combining molecules. मतलब अगर दो गैसेस आपस में कंबाइन किया है to form ammonia, then you first thing that you need to do is of course balance the equation, and now you need to keep in mind कि इनका ratio 1:3:2 है. तो the law says कि अगर इसका 1 react कर रहा है नाइट्रोजन का, तो 3 volumes of hydrogen are reacting and 2 volumes of ammonia are formed. Therefore, अगर 10 volumes of nitrogen react, how much hydrogen will be required? 30. 30. Very good. And how much ammonia will be formed? 20. 20. ये हम लोग को Gay-Lussac's law बताता है. इस लॉ में और कुछ है ही नहीं. This is what the law talks about. This is all the law understands. इसके बाहर लॉ में और कुछ नहीं. तो अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरा तरह से पूछें, अगर ये 100 वॉल्यूम होगा तो इसका कितना रिक्वायर्ड होगा? 300. और इसका कितना फॉर्म होगा? 200. 200. So if I change the question and ask कि 50 liters of ammonia needs to be prepared, how much nitrogen will be required? What will be the answer? Hello? 25. 25. And how much hydrogen will be required? 75. 75 is correct. गुड. अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो रेशियो तो हम लोग समझ गया 1:3:2. नाउ मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लेंगे और 500 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा? बोलो. एक साथ 1 और 3 से 2 हो रहा है. 1 और 5 से approximately 320. I'm not sure. देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक नाइट्रोजन है तो वो हमेशा 3 के साथ ही कंबाइन करेगा. नो मैटर हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उसको 3 ही चाहिए. समझ में आया? Therefore, अगर 100 हमको दिया गया है तो 100 will only react with 300 and 200 will be left, बच जाएगा. And the ammonia formed will only be 200 liters. क्या मेरा बात समझ में आया? जो 200 लीटर ऑफ हाइड्रोजन जो बचे रहेगा उससे क्या बच जाएगा. क्या कर सकते हैं? तो हमेशा तुम मान लो डोमिनोज में गया, ठीक है, डोमिनोज में पिज्जा खाने गया. नाउ तुमको एक पिज्जा के संग 2 गार्लिक डिप चाहिए, चीजी डिप चाहिए, ठीक है. अगर हम तुमको 10 पिज्जा दे दें, तुमको कितना डिप चाहिएगा? 20. अगर हम तुमको 10 पिज्जा और 50 डिप दे दें तो तुम क्या करेगा? तभी यूज तो 20 ही आएगा. 30 डिप्स बच जाएगा. तो ये वैसे ही बच जाएगा. घर वापस ले आना. बात समझ में आया? हाँ. तो वापस से पूछते हैं एक नया क्वेश्चन के थ्रू. अगर मुझे 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया और 200 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया, तब क्या होगा?
So, Yes, sir. so can we write vapor density as molecular weight by 2? Absolutely. Okay. भाई बताओ. तो रेशियो क्या होगा यहाँ? चलो 1:3 ये रहा. 1:3:2. अरे दिखाई दे रहा है वो तो. हाँ. तुम रियल लाइफ के बारे में सोच, इजी होता है. एक पिज्जा के संग मुझे 3 गार्लिक डिप चाहिए, तो 200 पिज्जा के संग कितना गार्लिक डिप चाहिए? 600. 600. बट मेरे पास तो खाली 150 गार्लिक डिप है, तो क्या हम सारा पिज्जा कंज्यूम कर हाँ. पाएगा? नो. तो उल्टा सोचो, 3 गार्लिक डिप के संग मुझे एक पिज्जा का जरूरत पड़ता है, तो 150 गार्लिक डिप के संग मुझे कितना पिज्जा चाहिएगा? 200. हट, हम रिपीट करते हैं. तो लिखा है यहाँ तो. अबे वो तो तुमको दिया गया है. तुमको जो दिया गया है पूरा तुम कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वही तो प्रॉब्लम है. समझ गया? इसमें तो एक्स्ट्रा है ना, थोड़ा बच 50. जाएगा. 50, वेरी गुड. 50 नाइट्रोजन. 50 नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड, राइट? तो हाउ मच विल बी लेफ्ट बिहाइंड? 150. 150. तो देखो हम वापस से लिखते हैं, 150 हाइड्रोजन will react with 50 liters of nitrogen. ऐसा क्यों? Because 3 reacts with 1, तो 150 हाँ, reacts with समझ 50. गया. तो मेरे पास था 200, तो what is the leftover? 150. Very good. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, समझ गया. Good. तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लियर हुआ क्या? There is a reaction, carbon monoxide reacts with oxygen to form CO2 gas. Step 1 क्या होना चाहिए बताओ मेरा? नो, उसको बैलेंस करना है. बैलेंस करना. वेरी गुड. तो रेशियो देखो क्या आ गया, 2:1 आया. Now my question is that I have been provided 50 liters of carbon monoxide. So how much is the oxygen required and how much will be the CO2 produced? ये मेरा question. 50, 25, 50. बात समझ में आया? Good. हाँ. My next question is 100 liters of CO and 100 liters of oxygen are given to me. What will happen after this? So उसको use 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन करना है. Very good. तो 100 will use बनेगा only 100 50, लीटर. so 50 will be left. And बनेगा 100 liters of CO2. Very good answer. Clear हो गया? हाँ सर. This concept is known as Gay-Lussac's law. अगर तुम्हारा क्लियर है, if you will be able to grasp, तो हम मोल कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट करेंगे, or you can do it another day as well. नहीं ठीक है, तुमने मूवी कॉन्सेप्ट. Are you ready to carry on? हाँ सर. Good. यहाँ तक समझ में आया? हाँ.
तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के पहले एक दो बेसिक चीज समझते हैं। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। तुम मेरे को बताओ इसका एटॉमिक वेट क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। सेम वे में ऑक्सीजन का बताओ एटॉमिक वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बोलो। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 एंड मोलेकुलर वेट 100। 100 कहाँ से आया बे? नहीं सॉरी 2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, हाँ तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2। ऑक्सीजन 16 गुड और 32। 32। नाउ इन सब का यूनिट क्या है मुझे ये बताओ। यूनिट एज एन बैलेंस है। नहीं भाई, यूनिट मतलब यूनिट और क्या। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर से मेरे घर का डिस्टेंस है 5 वॉट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, अच्छा क्या होगा पहले बताओ। किलोमीटर। किलोमीटर। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा? आर और कुछ भी, ये यूनिट होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। समटाइम्स रिटन एज ओनली यू। तो एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, याद रहेगा। एटॉमिक मास यूनिट AMU, ऑल्सो रिटन एज ओनली यू। अब हम एक कंपाउंड बता रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, दोनों कंपाउंड का। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 34। 18। हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, अभी तो बताया। सर आप तो वो मोलेकुलर बोले, एटॉमिक थोड़ी ना। अरे बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इज 16। मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? हाँ तो वाटर का 18 है। तो हम तो वाटर का ही पूछ रहे था। CO2 का कितना होगा बता। कार्बन का 12 ऑक्सीजन। कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। 12 plus 32 44। हेलो हाँ हाँ बोल, हम सुन नहीं पाया। 44। 44 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट तुम दोनों का यूनिट मेरे को नहीं बताया। यू एटॉमिक मास। वेरी गुड। तो ये बात क्लियर हो गया। हाँ नाउ ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज एक्सट्रीमली 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 स्मॉल, राइट। तो एक मॉलिक्यूल का वेट इतना छोटा होता है, एक मॉलिक्यूल खुद इतना छोटा होता है कि हम लोग देख ही नहीं सकते हैं उसको। तो एक मॉलिक्यूल का वेट भी हम लोग मेजर ही नहीं कर पाएंगे, नेग्लिजिबल वेट होता है। बट अगर हम लोग 18 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लें, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कितना वाटर होगा? एक वाटर बॉटल का कैप में जितना पानी आता है शायद उतना 18 ग्राम्स होगा, राइट। एक छोटा कप में जो पानी हम लोग लेते हैं वो 18 ग्राम्स होगा। तो एक 2 चम्मच में जितना पानी आता है वो 18 ग्राम्स होगा। तो 18 grams of water is actually quite a significant volume जो हम लोग आंख से देख सकते हैं, राइट। तो 18 grams of water is the weight of 1 mole of water। ये याद कर लो, ये लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए कि what is 1 mole of water? It is the weight of 6.023 into 10 to the power 23 molecules। तो I repeat, अगर मेरे पास एक जगह पर 6.023 into 10 to the power 23 इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ऑफ अ गिवन कंपाउंड, देन उसका जो कलेक्टिव वेट होगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। क्या ये बात समझ में आया? तो बेसिकली 18 यूनिट इज द वेट ऑफ 1 molecule and 18 grams is the weight of 1 mole of water। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक और एग्जांपल लेते हैं।
CO2 का बात करते हैं, इसका molecular weight is 44 units. Do you agree? तो ये क्या चीज का वेट है? 1 molecule of CO2, जो कि बहुत छोटा होता है. बट 1 mole of CO2 का वेट क्या होगा बताओ? grams. ये चीज ध्यान रखो. ये मॉलिक्यूल का वेट में यूनिट होता है U, मोल का वेट में यूनिट होता है ग्राम्स. बस ये चीज समझ लो. बात समझ में आया? Yes or no? Hello? Are you there? सर वो थम्स अप किया है वहाँ पे. ओ, मुंह से क्यों नहीं बोला? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है. हाँ. टेक्नोलॉजी ठीक है भाई, लेकिन चलो ठीक है, प्रोसीडिंग. आई थिंक कुछ ऑडियो इशू है. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये इस चैप्टर में बहुत काम आता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस by molecular weight of the substance. तो मान लो मुझे दिया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. सर आप वेट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक मुझे मिनट. लगा, हाँ वापस से बता देते हैं. हम नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा था. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2, तो मेरा आंसर होगा 88 डिवाइडेड बाय 44. वेरी गुड. तो आंसर हो जाएगा 2. ठीक है. हाँ. The next important thing that we need to understand while understanding moles is कोई भी गैस अगर at STP होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? वो टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है. स्टैंडर्ड प्रेशर. वेरी गुड. 76 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी. या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. अंडर दैट कंडीशन कोई भी गैस इन द वर्ल्ड विल ऑक्यूपाई 22.4 liters or 22400 centimeter cube. ठीक है. ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हम क्या चीज बोला मोल के बारे में? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बोला वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है इन ग्राम्स. यस और नो? दूसरा हम क्या बोला? 1 मोल ऑफ अ गैस occupies 22.4 liters or 22400 centimeter cube. Or I can also say 1 mole of a substance is that substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules. ठीक है. तो 1 मोल्स के बारे में 3 इंफॉर्मेशन मुझे पता है अब. नंबर 1 क्या है कि इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स. नंबर 2 मुझे क्या पता है, 1 मोल अगर किसी भी गैस का मेरे पास होगा तो उसका वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर्स. और थर्ड मुझे क्या पता है 1 मोल के बारे में कि उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स.
This entire concept that we discussed right now is called the mole concept. एक बार repeat कर देते हैं. 1 mole of a substance is that substance जिसका मेरे पास molecular weight है in grams. For example, if we talk about CO2, so the molecular weight of CO2 is 44 units. If I have 44 grams of CO2, I will say I have 1 mole of carbon dioxide gas. Similarly, अगर मेरे पास एक quantity of CO2 दिया हुआ है and उस quantity of CO2 का volume is 22.4 liters at STP, then we'll say मेरे पास जो quantity of SO2 available है, CO2 available है, that is 1 mole. Similarly, अगर मेरे पास जो quantity of CO2 दिया हुआ है उसके अंदर में इतने number of molecules है, this number is also known as Avogadro's number. Then we can say that we have 1 mole of CO2 gas. So these are multiple definitions, multiple understandings of mole concept. Clear हुआ? हाँ सर. Good. एक और छोटा सा टॉपिक है, बोलो तो बता दें. Stoichiometry. नहीं, कौन सा स्टोइशियोमेट्री? नहीं, स्टोइशियोमेट्री आई विल कलेक्टिवली टीच एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास. जो टॉपिक अभी हम बताने वाले हैं वो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है. एवोगैड्रोस लॉ 1 लाइन का लॉ है, बस ध्यान से समझ लो एक बार. This law says that if we have two gases, gas 1 and gas 2, or you can have more number of gases for that matter, and so on. अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम V, 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 then इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा. सेम. बात समझ में आया? सो अगर मेरे पास एक गैस है CO2, एक गैस है SO2, एक गैस है ऑक्सीजन, एक गैस है ओजोन, एंड सो ऑन, बहुत सारे गैसेस हैं. ऑल ऑफ देम हैव टू बी गैसेस एंड आई हैव केप्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट. अगर मेरे पास हर गैस का 5 लीटर करके अवेलेबल है, तो each and every one of the gases will contain the same number of molecules. ठीक है, ये वाला बात क्लियर हुआ? So the statement is the equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain same number of molecules. Equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain the same number of molecules. ठीक है? Any questions? None. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का मेरे पास 5 लीटर है, ऑक्सीजन का मेरे पास 15 लीटर है. तो अगर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x होगा, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल आई हैव? थ्री एक्स. देखो, इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 3 टाइम्स ही होगा. हाँ. अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होता. हाँ, Avogadro. दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. क्लियर हुआ? हाँ. प्रैक्टिस करो अच्छा से. गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स, थ्योरी अच्छा से देखो. इन द मीन टाइम आई विल ऐड दिस वीडियो इन द ग्रुप इन अ फ्यू मिनट्स, सो दैट आप उसको रिपीटेडली रेफर कर सको. ठीक है? ठीक है. चलो प्रैक्टिस करो एंड आस्क मी ऑल द डाउट्स So- थ्रू द. हाँ बेटा बोलो. सो जब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन में मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसमें हम परसेंटेज लोग कंपोजिशन में मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. हाँ निकालो. उसमें कौन सा यूनिट लिखना होगा? यूनिट तुम लिखेगा ही नहीं. AMU या ग्राम? तुम No यूनिट unit. लिखेगा नहीं, तुम यू लिखो. मतलब
स्मॉल यू, ओके सर, ऑल्दो तुमको यूनिट नहीं लिखने से भी चलेगा वहां पर, ठीक है। ठीक है सर। You had asked a question in the WhatsApp. क्षितिज, वो क्या था मुझे समझ में नहीं आया. The last question में why can't we find EF directly? What does that mean? उस क्वेश्चन में दिया हुआ है calculate empirical formula of a compound whose molecular formula is C8H6O4 and empirical formula weight is 83. ओ तो बेसिकली ना तुम डायरेक्टली कर सकते हो, बट वो लोग चाहता है कि तुम घुमा के करो. सो डायरेक्टली करने से इसमें मार्क्स इससे कटेगा नहीं, क्या? इस समय मार्क्स कटेगा ना, बिकॉज तुम क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएगा दे वांट यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, नहीं तो देगा क्यों इतना डेटा. तो ऑनेस्टली इट्स अ बैड क्वेश्चन, तुम्हारा गलती नहीं. ठीक है. या एनी डाउट्स फ्रॉम एनीवन? ओके चलो कंप्लीट करना एंड देन